So that we can properly handle this press conference on a very important issue. So I'll request Anurag to please come on the stage, please. I request Zoya to please come. Bhattab, please come. Shahid, please come. Arya, please come. Sudhir Mishra, please come. Mukesh Jao, please. Anand Rai, please come. Rima, Abhishek, please come. Sit. Anurag, idhar. Rahul, please come. Ramesh ji, please come. बोला मैंने. Shrishti, please come now. Shrishti, please come. Your chair, please. No. It's okay. Get a chair. Kuku ji, आओ ना please. वो chair ले आओ ना अपनी खुद की. Ashwini, please sit now. Yeah, पीछे लगा लो कुछ. Abhishek, आओ ना please. Let's squeeze a chair in between. Yeah. Ekta, please come. एक chair ले आओ. जरा बीच में. एक और ले आओ सौरभ. Get one chair ना. Get a chair ना. Saurabh, get a chair. On behalf of Indian Films and Television Directors Association, I welcome you all for this very important press conference. And it's not only the directors who are here. It's been organized by FTIDA. We have producers here. We all know everybody by face, and we don't have to introduce each and every one. Now, let's come to the reason why we are having this press conference. There is an attack on the freedom of expression of a filmmaker. And let me be very clear, I'm here as a filmmaker and a citizen of this country, and not as a CBFC board member. We have, apart from the team of the film, we have other directors, we have other producers and actors of the film to very clearly mention that whatever has happened is not in good taste of a freedom of a filmmaker. Now, to begin with, I would request Bhatt Sahab to opening back as far as this entire issue is concerned, and then Anurag will mention. The more things change, the more they remain the same.
The year was 1973 when I began my career as a filmmaker. My first film, Manzilein Aur Bhi Hain, came into problem with the censors. It was refused certificate for trying to subvert the institution of marriage. After a long 30-year career in the year 1998, when I hung my gloves as a director, my film Zakham, which was autobiographical, also ran into trouble with the censors when we had, the chairperson was our dear Asha Parekh ji. I had to fight with the government of the day and finally release my film at huge costs. Subsequently, the film got a national award for Best Film on National Integration, and even Ajay got an award. But what was heartbreaking was what I was subjected to. The year is 2016. India has entered a new age. There are more young people today speaking a different language, globally connected, having aspirations to match the mightiest nations in the world. On my right is Alia and Shahid, on the left is Zoya. Ekta sits behind me. They are the people who are the future, who dream larger dreams than we dreamt. All our talk of growth and progress is poppycock if the perfume of freedom which the founding fathers gifted to us is taken away. Do you want to make India into a Saudi Arabia where there's opulence, wealth, but not the most prized asset, the right to free thinking? A society that does not respect free thought sows the seeds of its own destruction. And this is what is happening. I come here to stand shoulder to shoulder with the filmmakers and for my fraternity, and I'm very glad that such a mighty turnout is here. Because I think it's tragic that one of us, Pahlaj Nilani, till yesterday fought shoulder to shoulder with me against the laws of the censorship which impinged us. It is tragic that one of us goes and becomes the toady of some powers which want to muzzle us. Nothing has changed. Nothing. In 73, my film was stopped. It was the emergency time. Today, it is tragic that as we inch towards release day, where the stars have gone out of the way and created a film which kind of holds the mirror, which shames our Indian society about the drug menace, is being strangulated. I think every freedom-loving individual must stand up and articulate his anger against this practice that's going on here in Bollywood. I feel the day is not far that if we keep silence, we would not be allowed to make films that look beyond the inane films that we made way back in time when all our narratives were reduced to just a boy meets girl story and they lived happily ever after. So I stand here to appeal to you to articulate our message, because this is not the industry problem at all. This is a problem of our country. And I think, as Dr. Ambedkar said, that freedom is a plant that we need to water individually every day. It's not guaranteed to us when we were born as a nation. This generation now, we all need to give our contribution to preserve this freedom, and that's what we are doing. And I will fight till my last breath to preserve the freedom of free thought. This is the land of Buddha, this is the land of Gandhi, and I dare anybody who can stop me from doing that. That's all I have to say. Thank you, my friends. Thank you, Bhatt Sahab. I'll request Zoya if you'd like to address. I mean, the fact that I'm sitting here will tell you which way my politics lie. I think this is two-pronged. I think there's one issue which is of the certification board that is behaving like the censor, which is cutting. I don't think that's their job. I think you certify a film, you can say 18, you can say 21, adult certificate, you can say UA, you can say U. Then it's up to the discretion of the public. You cannot certify something as adult and ask for 89 cards. What are you saying to the adult population of your country? That they are not fit, they're not equipped, they're not going to process this movie properly? I mean, you cannot take that away. That is one issue. The second thing is, I think, a constant denial of what's going on in society. Everything is like it doesn't exist.
you know, digging your head in the sand. There's no drug problem, there's no marital rape, there's no racism. I mean, it's just ridiculous. You cannot fix a problem. The first thing to do is you have to address it. So I think freedom of expression is important because the sole purpose when you're an artist at the core is to hold up a mirror to society. And you need to allow people to do that. There are a lot of films out there that offend me. I see certain promos, I see certain trailers, I see certain scenes where women are treated a particular way, and it angers me. But I cannot ban that. It's made. It's my choice to not buy that ticket. And I think Urta Punjab has to release the way it is. I mean, this is a fight not just of the filmmaker and the producers. I mean, this is a fight for all of us because it could be anybody. That's all I have to say. And I think as a people, we have to address the stuff that's going on around us because denying it is really not helping. Thank you. ओके 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 नहीं, हमारे पास प्लेयर्स बहुत हैं, चिंता मत करो, हिंदी वाली भी हैं. आनंद राय. गणेश तो नहीं है, नहीं मेरे से बेहतर लोग हैं यहाँ एक्सप्रेस करने के लिए. बट हाँ, मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि मुझ पे इतना शक स्कूल में भी नहीं किया गया था जितना अब किया जा रहा है. डरा दिया है हमें, मतलब बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो. पर द ओनली थिंग इज़ कि थोड़ा सा विश्वास रखिए, रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, कुछ सोच के इतनी मेहनत करते हैं और फिल्म बनाते हैं, तो शो सम ट्रस्ट, इतना ही मांग रहे हैं. थैंक यू. आई थिंक ये इशू बिल्कुल नहीं होना चाहिए. और जब हम एडल्ट सर्टिफिकेट मांगते हैं तो फिर उसमें कट्स की कोई बात ही नहीं होती, कोई गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए. आई थिंक देश की जनता बहुत समझदार है और वो जानती है कि वो क्या देखना चाहते हैं, तो इस चीज़ पे डिस्कशन भी नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से. तो I think the cinema which we make today is about the society and what happens in the society. We do not create and we do not imagine facts and put them in. I faced similar situation when I made Parzania, and it's tough. And I think the censor board, whoever is, and whatever be the modus operandi of whether they are going to give certification or any such thing like that, they should definitely keep an open mind and not be moral schools and judgments over here. It should be clean and clear that let the society decide what they want to see. सुधीर. हाँ, अंग्रेजी में कहते हैं आस्क नॉट फॉर होम द बेल टोल्स, इट टोल्स फॉर दी. तो घंटे जो बज रहे हैं वो हम सब के लिए बज रहे हैं, और ये सेंसर बेल आज जो चौबे के लिए बजी है वो हम सब के लिए बजेगी. और हम सब जो अपने ज़माने को थोड़ा दर्शाना चाहते हैं अपनी फिल्मों में, तो बहुत अच्छी बात है कि हम सब आज साथ खड़े हैं. ये एक शुरुआत बहुत अच्छी है, क्योंकि अकेला लड़ना, अगर अकेले इसने फिल्म बनाई होती तो अकेले कहाँ जाता. तो ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है. और एक कहीं जो हो रहा है उसमें मुझे कुछ बहुत एक्स्ट्रा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जो भी शब्द हो, क्योंकि संवैधानिक एक संस्था है ये जिसका नाम सेंसर बोर्ड है, और उनका काम कुछ दायरों में काम करना है. तो नाम उसका सेंसर बोर्ड तो है नहीं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है. वो काम सेंसर बोर्ड का कर रहे हैं, तो हम उनको बार बार भूल के बोलते रहते हैं सेंसर बोर्ड. तो उनको सर्टिफाई करना उनका काम है, वो करें. नहीं तो मुझे कुछ आनंद की तरह मुझे भी लग रहा है कि स्कूल का जो एक बहुत सख्त प्रिंसिपल होता था वो घूम रहा है, कब थप्पड़ मारेगा. किसी दिन तो हो सकता है तुमने फिल्म बनाई, अब ये लो, ऐसा कुछ हो. तो ये कुछ अजीब सा माहौल है. और 18 साल की लड़के लड़कियां हैं, और ये जो अब हो चुका है ये एक्चुअली क्वाइट फ्यूटाइल है, ये जो हो रहा है, जो बहुत, क्योंकि अल्टीमेटली तो उड़ता पंजाब देखी जाएगी, अल्टीमेटली तो नेट पे आएगी, अल्टीमेटली तो हर चीज़ वो होगी. आप सिर्फ उसको डिले करेंगे, आप नुकसान पहुंचाएंगे फिल्म मेकर्स को, आप नुकसान पहुंचाएंगे वो प्रोड्यूसर्स को. तो आप मैसेज शायद ये देना चाहते हैं कि इस तरह की फिल्मों पे पैसा ना लगाओ, तो आगे आप डरेंगे इस तरह की फिल्म बनाना से.
तो आप भाई मैं तो नहीं डरूंगा, मेरे ख्याल से यहाँ कोई नहीं डरेगा. I'll request थैंक यू. Abhishek, the director of the film. Yeah, it's very important. सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आप सबका. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर. मीडिया आप लोगों का कि आप लोग यहाँ आए, ये हमारे लिए, हमारी फिल्म के लिए, फैंटम में, बालाजी में और मेरे लिए बहुत 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 खुशी की बात है कितने लोग आज जमा हुए हैं. और जो आनंद साहब ने कहा, सुधीर भाई ने भी कहा डर के बारे में, माहौल डर का हो गया है. इनफैक्ट 2 दिन पहले की बात है जब ये बात मीडिया में उतनी फैली नहीं थी और ये मीटिंग्स चल रही थी हमारी सर्टिफिकेशन बोर्ड के साथ, तो मैं इतना परेशान था कि रात को 3 साढ़े 3 बजे मैंने इनको मैसेज किया अपने मित्रों को, विकास को और मधु को, कि यार छोड़ देते हैं, जाने देते हैं, जो हो रहा है, लेट्स रिलीज द फिल्म विद द कट्स, बिकॉज बहुत पंगा हो जाएगा, कौन झेलेगा. नहीं होता मेरे से यार, इतनी हिम्मत नहीं है. कल को रिलीज़ हो जाएगी, फिर कोई खड़ा हो जाएगा, मेरे ऊपर केस कर देगा, आपको परेशानी होगी, फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ होगी. क्या है, किसके पास इतना टाइम है सब करने के लिए. चलो रात गई बात गई. अगले दिन जब मैं इनसे मिला तो हम लोगों ने बात की फिल्म के बारे में और हमें यही एहसास ये हुआ कि यार अगर हम चाहे रिलीज़ हो कट के साथ चाहे ना हो, लेकिन आज अगर हम पीछे हट जाएंगे तो फिर वो दूसरा जितने भी फिल्म मेकर जो आगे फिल्म बनाएंगे वो कोई भी एक पॉलिटिकल फिल्म नहीं बना सकता, कि कोई भी रियल इंसिडेंट पे फिल्म नहीं बना सकता, किसी भी शहर का नाम नहीं ले सकता, किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में कुछ कह नहीं सकता. तो ये तो मतलब फिर बहुत ये मॉरली मुझे बहुत गलत लगा. और सिर्फ यही वजह है कि एट ग्रेट पर्सनल रिस्क, एट ग्रेट फाइनेंशियल रिस्क, दैट Ekta is bearing, that Phantom is bearing, at great personal risk that Anurag has taken, not just as a producer but a friend and a fellow filmmaker. ये सारे लोग जो आज जमा हुए हैं, इससे हमको बहुत बहुत encouragement मिला है और हम ये चाहते हैं कि we are just going to stand up for what is right and what is rightfully ours. Thank you. I request Shahid to speak. Shahid. First of all, good afternoon to everybody here, and again thank you for being here. मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहूँगा. आई थिंक यहाँ पे जितने भी प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स हैं मुझसे बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड हैं और इस परेशानी से कई बार गुजर चुके हैं. मैं सिर्फ यही कहूँगा कि वी लिव इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, और अगर हमारे जनरेशन को, यूथ को इन्फॉर्म्ड रहने की इजाज़त नहीं है तो शायद कोई परेशानी है. द यूथ हैज़ द राइट टू नो दैट ड्रग्स आर अ मेनेस. दे हैव अ राइट टू नो कि उनके जीवन के साथ क्या हो सकता है अगर वो ड्रग्स में जाते हैं. फिर वो पंजाब का यूथ हो, महाराष्ट्र का यूथ हो, पूरे हिंदुस्तान का यूथ हो या पूरी दुनिया का यूथ हो, ये फिल्म जो मैसेज दे रही है उस मैसेज को सपोर्ट करने की ज़रूरत है. और ये फिल्म इट्स काइंड ऑफ बिकम द फेस ऑफ अ फाइट जो कई सालों से चल रही है, कि लोगों को एक्सप्रेस करने का मौका दिया जाए. शायद इसीलिए 2016 में हम यहाँ खड़े हैं, बिकॉज शुरुआत में ही अगर एक्सप्रेस करने का मौका नहीं मिलता तो ये दिन ही नहीं आता. सो लेट्स मेक श्योर वी स्टिक टू व्हाट दिस कंट्री स्टैंड्स फॉर एंड व्हाट एवरीबडी हियर इज ट्राइंग टू फाइट फॉर. दैट्स इट. थैंक यू शाहिद. बिफोर अनुराग से पहले कि बोलें, इफ्रिटा की तरफ से और मैं मुकेश जी की भी परमिशन लूँ, गिल्ड की तरफ से और इम्पा की तरफ से और दूसरे प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन की तरफ से, जो जिनका सब लोगों का सपोर्ट. IFPTC रमेश जी is representing the organization, producers organizations and directors organizations. Everybody is part of this concern towards this film, क्योंकि हमें लगता है कि ये फिल्म उड़ता पंजाब की बात नहीं है, बट एक पूरे क्रिएटिव फ्रीडम की बात है, इंडस्ट्री की बात है. हम डिमांड करते हैं आज कि हाल ही में, अभी फ़िलहाल 1 घंटे पहले, पहलाज जलानी जी ने कहा कि ये फिल्म जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी ने फंड की है और डायरेक्टर जो हैं अनुराग कश्यप जी को पैसे दिए गए हैं ताकि वो पंजाब में पंजाब की बदनामी करें. हम इस स्टेटमेंट को कंडेम करते हैं, पूरी जोर शरोर से इसको कंडेम करते हैं और हम डिमांड करते हैं एक अपॉलॉजी फ्रॉम पहलाज जलानी, दैट इट्स नॉट एन इंसल्ट to Anurag or the entire team or Ekta, Balaji or anybody for that matter. It's not an insult to one individual. ये insult पूरी film industry के लिए है, ये सारे producers की insult है, सारे directors की insult है और पूरी industry की insult है. तो we on behalf of IFTDA and the Producers Association demand an apology from Pehlaj
as soon as possible. Over to Anurag Kashyap. नहीं, हम लोग इस अनफॉर्चुनेट कि हमें यहाँ पे बैठ के जस्टिफाई करना पड़ रहा है कि हम जो है फिल्म बनाते हैं, हमें अपनी इंटीग्रिटी जस्टिफाई करनी पड़ती है, हमें अपनी ऑनेस्टी जस्टिफाई करनी पड़ती है, हमें अपनी ईमानदारी जस्टिफाई करनी पड़ती है. हमें जा ऐसा लगता है कि हमें हर स्टेज पे हर चीज़ के लिए एक सर्टिफिकेट चाहिए. जब तक हमारे पास वो सर्टिफिकेट नहीं हो, गवर्नमेंट अप्रूव्ड स्टैंप नहीं हो कि मैं ईमानदार आदमी हूँ, मेरा फिल्म मेकर, मैं कोई इंटेंशन नहीं है, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक फिल्म मेकर जो इतनी दूर से आया था यहाँ पे सिर्फ फिल्म बनाने. मुझे नहीं मालूम था कि हम लोग को इतने पहाड़ खोदने पड़ते हैं, इतने समुंदर पार करने पड़ते हैं. लेकिन यहाँ पे आने के बाद जब पहली फिल्म बनानी शुरू की तभी समझ में आ गया था कि हाँ, जब बहुत ही इनोसेंस में मैंने एक फिल्म बनाई थी ब्लैक फ्राइडे, जिसको सब लोग बोलते हैं कि अनुराग कभी दोबारा ब्लैक फ्राइडे नहीं बना पाता. इसलिए नहीं बना पाता कि उस एक फिल्म ने मेरा इनोसेंस खत्म कर दिया था. उस फिल्म को निकालने के प्रोसेस में मैं इतना ज़्यादा अवेयर हो गया था कि यहाँ पे आप क्या नहीं कह सकते हो, क्या कह सकते हो, क्या आपको कहने नहीं दिया जाएगा, किस चीज़ के लड़ना पड़ेगा. उस एक फिल्म ने मेरा पूरा इनोसेंस खत्म कर दिया था. तब से मेरी लड़ाई रही अपने आप से कि मैं उसको वापस पा सकूं, जो आया नहीं कभी. और ये जो है, हम लोग उसके बावजूद कोशिश करते रहते हैं कि हम फिल्म करें. फिल्म जब बनाते हैं तो हाँ ठीक है, मैं एक तरह की का सिनेमा जो मैं देख सकता हूँ, बना नहीं पाता हूँ, वो मेरी शॉर्टकमिंग है, वो मेरी मजबूरी है, या मुझे समझ में नहीं आता. मैं देख सकता हूँ, मैं बना नहीं पाता. बनाऊंगा तो मुझे मालूम है कितना नुकसान होगा सबका. लेकिन हम जो फिल्म बनाना चाहते हैं, जो हम लोग जो चीज़ें हमें अफेक्ट करती हैं, जो चीज़ें हमें झकझोरती हैं, जिसको हम पर्दे पे डालते हैं, या कई बार झकझोरने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती. मतलब कई बार ऐसा हो सकता है जस्ट हम किसी चीज़ को सबवर्ट करना चाहते हैं. हम कई बार किसी चीज़ को एक उल्टा कान पकड़ के भी देखना चाहते हैं कि सिस्टम इसको घुमा के देखें तो कैसा होगा. हमें वो भी हक होना चाहिए, हमें सबवर्ट करने का भी हक होना चाहिए. और जब तक हम वो नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता कि हम किसी तरह का प्रोग्रेस यहाँ कर सकते हैं. और ऐसे में हम लोग की अपेक्षा रहती है, चाहे वो आईएनबी मिनिस्ट्री हो, चाहे सरकार हो, और ये मैं पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हमारी लड़ाई सिर्फ अभी के उससे नहीं है, हमारी लड़ाई सेंसरशिप से बहुत समय से चलती आ रही है. ये हमेशा जो है सब लोग उसको जो है एक किसी एंटी पर्टिकुलर पार्टी का एंगल दे करके उसको एक बहुत बड़ा खेल बना दिया जाता है, और हमारी बात को कभी सीरियसली लिया नहीं जाता है. तो इट इज़ नॉट दैट. नाउ द थिंग इज, हर बार जब एक नई गवर्नमेंट आती है, हर बार जब एक नया आईएनबी मिनिस्टर आता है, हर बार, चाहे वो एक ही सरकार में 2 बार क्यों ना आए, हमारे अंदर एक नई होप आती है, शायद ये आदमी हमारे साथ होगा, शायद ये आदमी हमारी बात समझेगा. ये हमारे साथ हर बार हो चुका है. और सबसे बड़ी बात इस बार ये हुई थी, when we got the new MOS came down to meet us, that had not happened. It gave us a lot of hope. Mr. Rathore came down to meet us. It gave us a lot of hope. When Mr. Prahlad Nehlani was made the censor board chairman, भट्ट साहब खुद बोलते हैं हमारे अंदर के बीच का आदमी चेयरमैन बना है. It gave us a lot of hope. We had no idea where we were heading. We had no idea that कि हमारा ये हाल हो जाएगा कि पिछले 2 सालों में जितनी फिल्में ट्राइब्यूनल में गई हैं वो रिकॉर्ड नंबर है एज कंपेयर टू उसके पहले जितनी फिल्में ट्राइब्यूनल में जाती थी. मतलब ऐसा कभी हुआ नहीं. मतलब क्या हमारी फिल्में इन पिछले 2 सालों में इतनी ज्यादा मतलब बद से बदतर हो गई कि हर फिल्म को ट्राइब्यूनल में जाके क्लियर होना पड़ता है, या फिर हम लोग किसी एक ऐसी फोर्स के साथ डील कर रहे हैं जो वहां पे बैठ के अपनी मनमानी कर रहा है. और ऐसा क्यों है कि जो फिल्में आगे जा रही हैं वो या तो एक बहुत ही कहीं से कुछ वो या तो कोई अदर लैंग्वेज की फिल्म हो, हिंदी के कुछ 4-5-6 आइडेंटिफाइड पीपल हैं उनकी फिल्में जाती हैं उस लेवल तक, उनकी फिल्मों को प्रॉब्लम होती. क्यों? क्योंकि ये वो लोग हैं जिनका अपना माइंड है, ये वो लोग हैं जो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, और ये वो लोग हैं जो डिबेट करते हैं, जो आंख मूंद करके बात नहीं मान लेते हैं. तो उनको बहुत ज़्यादा ट्रबल होती है. और बाकी जो लड़ते हैं उनको किसी तरह बुली करा के, डीले करा के, एक प्रोसेस बन गया है कि फिल्म को इतना डीले करो, इतना डीले करो कि रिलीज तक के पास तक पहुंच जाए. झक मार के फिल्म मेकर को हमारे सारे कट्स एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, उसको झक मार के प्रेशर में आके, फाइनेंशियल प्रेशर में आके उसको सब लेना पड़ेगा और फिल्म रिलीज करनी पड़ेगी. और इस तरह का जो एक बुलिंग एटीट्यूड है जो बहुत समय से चला जा रहा है, और उसको डिफेंड करने के लिए इतने सारे झूठ का सहारा ले जा रहा है. वो हर बात पे झूठ होती है. उनको हम यहाँ पे आज सुबह सुबह बहुत सारे नए एलिगेशंस पहला जी ने दिए. उन्होंने पहली चीज जो बोली कि मंडे को उनका वो रेडी था सर्टिफिकेट,
और हम में से कोई लेने नहीं आया। हमने कल एक लीगल लेटर उनको भेजा था जो उनके ऑफिस ने खुद उनके ऑफिस ने साइन करके एक्सेप्ट किया। ये लीगल लेटर फॉर हिम टू गिव अस द ऑफिशियल स्टेटमेंट, ये उनके ऑफिस ने साइन किया। इसकी कॉपी सबके लिए, विल गिव यू अ कॉपी ऑफ इट। मैं यही बता रहा, ये वो आदमी है जो जिनको जब पकड़े जाते हैं उनको समझ में नहीं आता है क्या, तो धड़ धड़ बिना सोचे समझे मुंह से एक के बाद एक उनके झूठ निकलता रहता है। हमें ऐसा आदमी नहीं चाहिए जो हमारे सेंसर बोर्ड का चेयरमैन हो। It is meant to be a certification board. It's not meant to be a censor board. We want someone we can put our point across with, and we don't want to cut our films. Fact कि जब हम अपनी फिल्म एडिट करने के बाद, इतना टाइम लगाने के बाद, जब सेंसर बोर्ड में या सर्टिफिकेट, हमें सेंसर बोर्ड ही बोलना ज़्यादा अच्छा है, में डालते हैं तो हमारी तरफ से वो डेफिनेटिव फिल्म होती है। वो फिल्म हम रिलीज करना चाहते हैं इसलिए हम डालते हैं, हम सर्टिफाई करने के लिए डालते हैं, ना कि कोई आए और हमारी फिल्म को काटना शुरू करे। हम लोग कहीं ना कहीं, हमारी एक जिम्मेदारी है जो हम समझते हैं। हम लोग ऐसे ही नहीं उठ के खामखा कोई फिल्म बना दे रहे हैं। और मैं तो बल्कि ये भी कहूंगा, मैं तो सेंसरशिप के इतना खिलाफ हूं कि अगर कोई उठ के खामखा भी फिल्म बनाए तो उसको भी अलाउड होना चाहिए, बिल्कुल अलाउड होना चाहिए, क्योंकि वो उस फिल्म को रिजेक्ट करने का हक जो है ऑडियंस को ही होना चाहिए। मुझे कोई वाहियात फिल्म नहीं देखनी, मैं नहीं देखने जाता, मैं नहीं टिकट खरीदता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिस फिल्म को मैं सोच रहा हूँ कि यार ये क्या बेहुदा फिल्म है वो रिलीज ना हो, उसको उतना ही हक है फिल्म रिलीज करने का जितना मेरे को लगता है कि नहीं, मेरी फिल्म में कोई सेंस है, मैं अपनी फिल्म रिलीज कर रहा हूँ, उसमें और मुझ में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। और ये जो लड़ाई है, ये जो हक की लड़ाई है, ये हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की लड़ाई है। हम किसी एक चीज को एक्सप्रेशन कहें और दूसरी चीज को एक्सप्रेशन ना कहें, इस तरह का भेदभाव भी नहीं होना चाहिए जो हर समय आ जाता है कि, और जो लड़ाई को इस तरह से इंटरप्रेट किया जाता है कि हम कोई पॉलिटिकल फिल्म के लिए लड़ रहे हैं तो हम जो है दूसरी फिल्म को नीचे गिरा देते हैं, अरे वो तो सेक्स कॉमेडी थी। क्यों भाई? दोनों फिल्म कहीं ना कहीं मेरे लिए एक ही क्वेश्चन में, हमारी सेंसिबिलिटीज अलग अलग हो सकती हैं, हम हर तरह की फिल्म देखना चाहते हैं, हर तरह की फिल्म की ऑडियंस है, हर तरह की फिल्म ऑडियंस को वो राइट दो ना रिजेक्ट करने का। वो राइट एक आदमी कैसे बैठ के डिसाइड कर सकता है पूरे देश की मोरालिटी? मेरी मॉरल बाउंड्रीज हो सकता है छोटी हो, उनकी मॉरल बाउंड्रीज हो सकता है ज्यादा चौड़ी हो, और हमें क्यों नहीं हक है हम अपनी अपनी मॉरल बाउंड्रीज खुद तय करें? So that's the whole thing, and it's also to register a protest that the kind of the way Mr. Nehlani has been dealing with it, it is not just de-stressing, it's financially de-stressing on us. It is literally breaking our backs and confidence. A lot of producers and studios are not attempting to encourage and go out and support a cinema that makes sense to a whole lot of us. Is because of the attitude of a man sitting up there. So somewhere I feel Sudhir is right when he says that ये एक systematic तरीका है हमें ये बोलने का कि आप जो है ऐसा सिनेमा मत बनाओ. And we want our right to do that. And that's why we are all sitting here. Ashwini Chaudhary, the General Secretary of IFFTDA, a filmmaker director, would like to say. मैं तो खड़ा होकर बोलूँगा, बचपन से बैठ के बोलने की आदत नहीं। एक तो कल अनुराग ने एक ट्वीट किया था जिसके बाद मैं और अशोक जी अनुराग से मिले। अनुराग का ट्वीट था कि दिस इज माय फाइट एंड आई विल फाइट इट अलोन, सो आई कॉल्ड अनुराग एंड वी वेंट टू मीट हिम। तो एक तो मैं अनुराग से ये कहना चाहता हूँ कि इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर एसोसिएशन, हम 10,000 मेंबर्स हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर्स, और ये लड़ाई इन 10,000 डायरेक्टर्स की है, और इसीलिए हम लोग अनुराग के साथ हैं। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये लड़ाई उस हर फिल्म मेकर की है, ये लड़ाई उस हर आदमी की है जो आज़ादी की अभिव्यक्ति में विश्वास रखता है, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में विश्वास रखता है। क्योंकि जब से प्रहलाद जी आए हैं, मतलब बहुत सीनियर फिल्म मेकर्स यहाँ बैठे हैं, कि जो हमारी आज़ादी है, बात कहने की आज़ादी है। देखिए फिल्म मेकर जो है वो जनमानस की आत्मा की आवाज़ है, ऐसा हम लोग कहते हैं। तो आत्मा की आवाज़ जो है, अगर उड़ता पंजाब जो फिल्म है, अगर वो पंजाब के जनमानस की आत्मा की आवाज़ को सामने लेकर के आ रही है, तो उस पर सेंसरशिप का क्या मतलब है? और आप ये मानिए कि पिछले कुछ समय से, जब से प्रहलाद जी आए हैं, हमले बहुत पहने हुए हैं, हमले बहुत तेज़ हुए हैं। सो अनुराग ने जो लड़ाई शुरू की है, जो उड़ता पंजाब की टीम है, उन्हें बधाई देना चाहूँगा। तो एक तो ये कि पूरी डायरेक्टर फैटर्निटी 10,000 मेंबर्स हम लोग हैं, यहाँ बबलू जी हैं, या रमेश जी हैं, मुकेश जी हैं, प्रोड्यूसर्स
की बॉडीज़ के रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं. सो एक तरह से पूरी इंडस्ट्री, क्योंकि जब भी अनुराग चैनल्स पे जाते हैं तो इनसे कहा जाता है कि आप हमेशा अकेला लड़ते हैं, इंडस्ट्री कहाँ है आपके साथ. तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इंडस्ट्री यहाँ है इनके साथ, आप देख सकते हैं. तो पूरी इंडस्ट्री एकजुट होकर के इस लड़ाई में अनुराग के उड़ता पंजाब की टीम के साथ है, और इस लड़ाई को एक लॉजिकल कंक्लूजन तक लेकर के जाना चाहिए इस बार, क्योंकि नहीं तो ये हमले लगातार बढ़ते चले जाएंगे. हमें ये करना चाहिए. और अनुराग सिर्फ एक फिल्म मेकर नहीं है, मेरा मानना है. जब से अनुराग पुराने दोस्त हैं, जब से ये फिल्में बनाते हैं, ये हिंदी सिनेमा का चे गुवेरा है. तो हमें, मुझे लगता है, इस आदमी के साथ देना चाहिए. और थैंक यू अनुराग. इम्तियाज, हाय भट्ट साहब, मैं भी बोल रहा हूँ. कोई ख़ास अलग बोलने को नहीं है मेरे पास. मैं ख़ुद को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि फ़िल्म हम लोगों ने नहीं देखी है, फ़िल्म के अंदर क्या है ये बाद में पता चलेगा. बट एनीथिंग दैट अटैक्स द फ्रीडम ऑफ स्पीकिंग इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, and I don't think we have to tolerate it unnecessarily. And the good thing is that we are together over here, and we'll see what happens. There are lots of friends of mine who are in this film, but that's still not the reason. The reason is, for me personally, to have the ability to say what I want to say, and to be taken and considered with dignity by the society. That just because we are filmmakers, it's not as though, as Anurag said, we need some stamp or approval from anybody. That's all. Satish. हाय एवरीवन. सबसे बड़ी खुशी की बात तो है कि जैसे कि अश्विनी ने बोला कि कई बार ऐसे मुद्दे उठते हैं और हम फिल्म इंडस्ट्री के लोग जो है सिर्फ पीछे से देखते रहते हैं और पीछे से सपोर्ट करते रहते हैं और चुपचाप सपोर्ट करते रहते हैं अपने मन में. लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि उड़ता पंजाब के साथ, चाहे वो डायरेक्टर एसोसिएशन है, चाहे वो प्रोड्यूसर एसोसिएशन है, या फिल्म इंडस्ट्री है, सब लोग खड़े हुए हैं. मैं उड़ता पंजाब का एक छोटा सा पार्ट हूँ. मैंने जब ये स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो इस स्क्रिप्ट ने मुझे हिला डाला था, और मैंने स्क्रिप्ट पढ़ते ही अपना पहला ट्वीट किया था कि व्हाट इज सुपर्ब स्क्रिप्ट. तो कई स्क्रिप्ट कॉमेडी होती हैं, कई ड्रामेटिक होती हैं, कई इन्वेस्टिगेटिंग होती हैं, कई पिक्चर ऐसी होती हैं जो रियलिज्म को दिखाती हैं कि आपके भारतवर्ष में क्या हो रहा है. ये फिल्म एक ऐसी है जो पंजाब की दशा को बताती है, जो कि वहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या है और एक मिनेसिंग और अटैकिंग प्रॉब्लम है वहाँ पर. क्या ये बात पहले कभी नहीं कही गई थी 2012 में या 2013 में या 2014 में? या इसका डेटाज नहीं है इसके कि क्या ड्रग मेनेस का क्या इफेक्ट हो रहा है वहाँ पर? क्या लोगों को नहीं पता था, या सरकार को नहीं पता था, या वहाँ के लोगों को नहीं पता था? जब ये पिक्चर शूट हो रही थी तो सब लोगों को पता नहीं था कि उड़ता पंजाब एक्चुअली इस प्रॉब्लम के ऊपर बनाई जा रही है. तो सडनली ये बात क्यों? ये अपने आप को सेंसरशिप एक ऐसी पिक्चर पे लगा देना और उसके इतने कट्स देना और उसके ऊपर ये कहना है पंजाब नाम ही निकाल दो, तो ये तो बस अबती हो गई है. मुझे लगता है कि ये बहुत ही बड़ा प्रहार है एक क्रिएटिव फ्रीडम पे, फिल्म मेकर्स पे, और स्पेशली इस फिल्म पे, जो कि एक बहुत खूबसूरत फिल्म है, जो कि एक समस्या को बताती है और उसका समाधान करने की कोशिश करती है. तो ये हमारी बड़ी दुखद, हमारे साथ जो कुछ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, और हम सब साथ हैं, अनुराग के साथ, एकता के साथ, डायरेक्टर्स के साथ, सब जितनी फिल्म के जितने लोग हैं, और हम सब लोग यहाँ खड़े हैं. वी आर ऑल विद यू अनुराग. थैंक यू. I request Mukesh Bhatt ji, President of Guild, to speak. मैं एज अ प्रोड्यूसर्स गिल्ड के प्रेसिडेंट के माध्यम से बोल रहा हूँ कि ये प्रोड्यूसर जो है जब वो फिल्म बनाता है तो उसके एक कहानी अच्छी लगती है सबसे पहले, फिर उसकी जर्नी वहाँ से शुरू होती है, और वो करोड़ों, आज की तारीख में आप फिल्म बनाने जाओ तो करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट है. ये मैं 40 ईयर से फिल्म बना रहा हूँ, मैंने सिर्फ 72 फिल्म बनाई अब तक. मेरी पहले भी काफ़ी फिल्में मैंने जो भट्ट साहब के साथ बनाई, सड़क हो या जख्म हो, हमने सेंसर के साथ हमारी काफ़ी डिफरेंसेस हुए, मगर ये जो आज हो रहा है वो कभी नहीं हुआ. ये तो
जो 10 तारीख को हमारे प्रोड्यूसर्स ने अप्लाई किया सेंसर के लिए, एग्जामिनिंग कमेटी के लिए, 10 मई को अप्लाई किया एक पिक्चर जो 17 जून को लगने वाली है। और जो CBFC की जो फंक्शनिंग है, उन्होंने अपना पूरा दिमाग इस्तेमाल किया कि इसको कैसा पहले देखना अवॉइड करें। वो डेट ही नहीं दी है कि एग्जामिनिंग कमेटी कब देखेंगे। वो फाइनली 10 तारीख को अप्लाई करने के बाद 18 मई को पिक्चर देखती है। फिर उसके बाद वर्बली बोलती हैं कि भाई हमारे कोई डिसीजन मेंबर्स में नहीं हो रहा है, कोई लिख के नहीं दे रही है, ताकि अगर लिख के दे तो प्रोड्यूसर आगे बढ़ सके, वो ट्रिब्यूनल के पास जाए, जो एक उसके पास एक रास्ता है बचने का, वो उसको रुका गया। फिर वो मजबूरन उसको आना पड़ा क्योंकि उसके पास कोई लेटर नहीं है। रिवाइजिंग कमेटी जो हमारे चेयरमैन के हाथ में है, रिवाइजिंग कमेटी, ये पूरा एक मैनिपुलेटिव गेम, एक पूरा सिस्टम, एक गलावा सिस्टम, एक करप्ट सिस्टम प्रिवेल कर रहा है हमारे CBFC में, जो मैं शर्म के साथ मुझे ये कहना पड़ता है। और ये जो CBFC की जो फंक्शनिंग है, मैं उसके खिलाफ बोलना चाहता हूँ। ये जो मैनिपुलेशन कर रहे हैं, आज एक दिन दहाड़े प्रोड्यूसर को रैंसम पे होल्ड किया जा रहा है। उसको आज अभी 2 घंटे पहले लेटर मिला है कच्छ का। आज तारीख क्या है? आज 8 तारीख है। पिक्चर रिलीज हो रही है 17 तारीख को। एक हफ्ते पहले ओवरसीज की डिलीवरी देनी पड़ती है। और हमारा जो चेयरमैन है सेंसर बोर्ड का, वो फिल्म इंडस्ट्री का आदमी है, उसको सब पता है ये। तो उसके बावजूद अगर वो कुर्सी पे बैठता है तो शर्म की बात है उसके लिए और हमारे लिए भी। I appeal to the ministry that he should be react to that question. Of course, obviously, I have not taken any money, but it's like I even feel ashamed defending myself. मतलब ऐसा कि कोई आदमी ऐसे कैसे आके उठा के बोल सकता है, काश कि मेरे को कोई बहुत सारे पैसे दे दे, मेरे को बहुत सारे आइडियाज बचे हैं फिल्म बनाने के लिए, मैं सारी फिल्म बना दूंगा। अनुराग, It's not the first time I have been called that, right? And you are the media. You are the media. You know, you can answer this question more than me. That do I really pick your calls or do I really reach out to you? How many people can say that I always take their calls? अनुराग आपसे That answers the question. अनुराग 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 That I think I made absolutely clear. With me, Prahlad Nilani, I don't talk to him at all. I do not talk to him at all because for me, I don't want to go through the humiliation of talking to him. अनुराग आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं अभी, क्योंकि अब 16th को जैसे मुकेश जी ने बताया कि 16th तक वो नहीं है, जज नहीं है, तो फिल्म का स्टेटस क्या है? अब फिल्म कैसे रिलीज होगी? नहीं, अभी हम लोग जब इस मीटिंग में बैठे हैं तब हमें अभी रिएक्शन आया कि FCAT के जो जज हैं वो बाहर हैं, वो 16 तक नहीं है। अभी उसके बाद हमें क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे हम लोग वापस जाके अभी डिसाइड करेंगे। तो उन्होंने आपको कोई गाइडलाइंस दी है कि अभी या वही है 89 कट्स की जो बात हुई थी और उत्तर पंजाब में वो जो हमारे जो अभी सारे जो so the information is better to producer like आप भी अगर बता दें कि ये सब अभी information आ रही है। So 17th see, को फिल्म FCAT, the रिलीज हो रही process है। is FCAT asks the censor board to give the details of their objection and censor board will send the details of their objection to FCAT. अनुराग अनुराग Anurag, Anurag, Anurag. Yeah. Anurag, would you think of delaying the movie, the release date? Anurag, what about the release date? Would you think of? Why are you shouting like this? Easy, take it easy. Okay, would you think of postponing the release date? See, I think it's a question better answered by my other brother. जैसे कि we are still going to try to release it on the 17th. So rest everything else, it as per the process. Finally, we have got the letter. Now we are allowed to participate in the process. So let's see how it goes. मैं अपना That was 1.5-2 years back. It was reported.
Absolutely. I think my disappointment was pretty clear yesterday. I pretty clearly I said I'm disappointed. In the light of what Anurag has said, I want to ask Anurag a very interesting question, and which is very important for all of you to know, because I want to call the bluff of Mr. Pailash Delani, his vicious way of moving things, I want to ask him a very simple question in front of the media. Today is, what's the date today? Everybody knows. I want to know when and how much time does it take for the CB, when will FCAT receive that letter? He has this very interesting modus operandi of keeping the letter in his drawer. He will never give you the cuts. Everything is verbal so that he can misinterpret, tell lies to cover up the way he wants to do things, which he's doing up till now. Yeah, the I previous want to letter ask he a sent is question. still in the speed post after 10 days. somewhere. Yes. So that's what I'm saying. All you know, he'll wake up on the 26th of June and decide to send the letter when there is some letter coming from the High Court or something like that. Till the time you don't push things, and he finds that his intention is only to do harm to the industry, and a person who's a roadblock and not a facilitator should be removed. That is something intolerable, unacceptable to the film fraternity, and we want him out because his moves are malicious, vicious. He is conniving in every act of his. He will delay the process, and in the process, I know, I'm a filmmaker, I'm a producer. The film is exposed to a minimum 60 crore rupee loss. Who's going to pay this? The government is going to pay this? The CBFC is going to pay this? It's a fundamental question I'm asking. Ekta Kapoor and Phantom have invested 60 crores of rupees. Who's going to pay this? I want Pailash Delani to answer this. He's being a filmmaker, he knows the amount of money that is riding on a film. This is unpardonable kind of exploitation and holding at ransom done by the state organization. In broad daylight, we are held at ransom, and this is absolutely appalling, and we will not take this anymore. Period, full stop. यार ऐसे नहीं सुनाई देगा एक एक कर FCAT में आज तक तो ऐसा हुआ नहीं, और जनरली कट्स देते नहीं है. So let's see when, see in the sense I don't like to presume things. So जो होगा वहाँ पे. We have not yet discussed that. I just saw this morning. We'll figure it out. What to do about it. Right now for me it's just a joke. The Madhu, just what political excuse me. Absolutely not. Absolutely not. The film does not refer to any political party or politician. See, it's not the letters don't come like, they don't count the number of cuts. They have asked us to delete certain words, and those words I don't know how many times they come in the film. We have not counted how many times Punjab comes in the film. We have not counted. So it's around 94. Okay, 94. I don't think so. Huh? This is mostly Punjab and name of the cities and all that. I'm saying that more than that, that also not is a kind of a public thing. I think the thing is the fact that he's asked for cuts is something that we are against. One sec. Yeah. हम लोग ने अभी मैंने यही कहा कि मैंने अच्छा एक चीज हम लोग ऐसा करते हैं कि एक सवाल का मैं जवाब एक बार दे दूं तो वही सवाल दोबारा ना पूछें. हम लोग की कोशिश है कि हम 17 को ही रिलीज करें. हम अभी हमें यहाँ बैठे बैठे मीटिंग में वो आया है कि FCAT का इंफॉर्मेशन की जज बाहर है, उनका लेटर आया है, तो अभी हम लोग उसको जाके फिगर आउट करेंगे वो उसको हमको कैसे सॉल्व करना है. तो हाँ, दूसरी चीज जहाँ तक कट्स का सवाल है, करेक्ट, हम ये फिल्म चाहते हैं जैसी बनाई है, जिस इंटेंशन के साथ सब लोग जुड़े थे फिल्म के साथ, ये फिल्म वैसी की वैसी बाहर आए. हमारी कोशिश है कि ये फिल्म को हम इंटैक्ट बाहर लेके आए.
तो कट उन्होंने कुछ भी मांगे हो, हमारे लिए उसमें जानने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे कट्स उन्होंने, आपने खुद ही मीडिया में पढ़े हुए हैं। लेकिन हम लोग चाहेंगे फिल्म इंटैक्ट आए, और हम लोग उसके लिए जहाँ तक जाना पड़ेगा, जहाँ तक लड़ सकते हैं हम लोग लड़ेंगे, जहाँ तक हमारी कैपेसिटी है, जहाँ तक हमारी हिम्मत है। I have no information like that, because I feel half the information that's floating around is being created to create an atmosphere of fear, and which I think should not be. One second. The prayer as of now is only for getting the letter, which we've got the letter. That is the way Mr. Pehlanilani interprets a movie. So that's what I would say. I think this is the last question, huh? Yeah. मुझे तो दोनों चीज़ों से ही प्रॉब्लम, मेरे को दोनों ही चीज़ें नहीं लगती। मुझे लगता है प्रहलाद जी का प्रॉब्लम कंट्रोल का है। जिस आदमी को कंट्रोल नहीं कर पाते वो आदमी उनका दुश्मन हो जाता है। और ज़्यादा दबाव की बात है, अगर सिर्फ पॉलिटिकल दबाव एक पर्टिकुलर फिल्म पे होता है तो इतने सारे लोग यहाँ नहीं बैठे होते। Thank you. कुछ ऐसा नहीं है। Thank you very much. We'll put an end to the press. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया. Thanks a lot. Thank you Ashok. Thank you. Mahesh ji. Shahid, one sec. Shahid, for picture. Rima. Please come. Satish, please.